Students, I am Anjana Yadav from PGT. Last week I was discussed the topic transport in plants. So the transport in plants in two ways, by xylem and by the phloem. Today I will discuss the next topic is transportation of materials and fluid in human beings. So in human beings, a rapid supply of nutrients, oxygens and hormones to various tissues and the immediate disposal of waste product is an essential requirement. So the human beings have a specialized circulatory system. This circulatory system has three main parts. First one is circulatory medium by blood, tissues, fluid and lymph. Second one is blood vessels by arteries, veins and capillaries, and third one is most important pumping organ is heart. So the blood is found in the heart and blood vessels like arteries, veins and capillaries, and the second one is tissue fluid found in the space between cells and organ. Third one is lymph found in the lymph vessels and lymphatic organ, example like spleen and tonsils. So now I will discuss the topic is human blood. So what is blood and what is work in our body? So blood is a red color liquid which circulate in our body. Blood is red because it contains red pigment called hemoglobin in its red cells. Second one is blood is connective tissues. Why it is connective tissues? Because it connect in our body parts and circulate the blood in all our body organs. Blood consists of four main things. First is plasma, second is red blood vessels, third is white blood vessels and platelets. The main component of blood is plasma, red blood cells, white blood cells and platelets. So the average blood in human beings is 5 to 6 liter in his body, and the part of plasma is 50 to 60% of the blood, and other cellular elements या corpuscles like 40 to 45% are present in our body. Blood always move away from the heart through the arteries and back to the heart through the veins. Now I will discuss the composition of blood. The composition of blood is two main components. First is plasma and second is cellular formed elements. So plasma, what is plasma? Plasma is a pale yellow colored liquid part present in our body and transport of food, CO2 and nitrogenous waste in dissolved form. So the plasma is divided in three parts: water, salts and proteins. So the proteins are three types in our body: albumin, globulin, fibrinogen. It is the proteins present in plasma: albumin, globulin and fibrinogen. So the albumin and globulin role play in transportation of hormones and enzymes, and the fibrinogen is main role in clotting. And the cellular formed element or blood corpuscles is the solid part, is divided in three parts: RBCs, WBCs and platelets. So the RBCs is also called as erythrocytes, and WBCs is also called as leukocytes, and platelets is also called as thrombocytes. So now I will discuss the cellular elements RBCs, WBCs and platelets. RBCs, it is also called as erythrocytes. It carries oxygen from lungs to all the cells of the body. RBCs, red blood cells, also called erythrocytes, which carries oxygen from the lungs
to all cells of the body. And the red color due to the pigment of hemoglobin. These RBCs are circular in shapes, biconcave and enucleated, means without nucleus, and disc-like structures is present. RBC is produced in bone marrow of bones, and the RBC's lifespan is 120 days. And the last point is old and worn out RBCs are destroyed in spleen and liver. सो RBCs क्या करती हैं बेटा, कैरी करती हैं ऑक्सीजन फ्रॉम लंग से ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी, और ये इनका जो कलर होता है वो रेड होता है ड्यू टू द पिगमेंट ऑफ हीमोग्लोबिन, एंड दिस इज़ अ सर्कुलर इन शेप, और भी इनकी शेप होती हैं बाइकनकेव एंड न्यूक्लिएटेड, मतलब ये विदाउट न्यूक्लियस क्या होती हैं, स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट होती हैं. क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेयर इज RBCs आर फॉर्म्ड, तो आप बता सकते हो कि RBCs आर फॉर्म्ड इन बोन मैरो ऑफ बोन्स. And the time period of life or the time period of RBCs is 120 days. एंड जितनी भी हमारी ओल्ड RBCs होती हैं, बिकॉज सेल्स हमारी बनती बिगड़ती रहती हैं, ऐसे हमारी RBCs का एक टाइम पीरियड होता है, लाइफ स्पैन होता है इनका 120 डेज़ का. सो आफ्टर 120 डेज दे आर ओल्ड एंड वॉर्न आउट RBCs इज डिस्ट्रॉय इन स्प्लीन, और ये कहाँ पर जाकर ब्रेक हो जाती हैं, स्प्लीन और लिवर में जाकर. Hemoglobin is a respiratory pigment present in pigment consist of two parts. First one is heme and second one is protein. हीमोग्लोबिन डिवाइड हो जाता है टू पार्ट्स में, हीम एंड प्रोटीन्स में. जो हीम होता है वो आयरन कंटेनिंग पिगमेंट्स होता है, एंड जो प्रोटीन्स होते हैं लाइक ग्लोबिन्स आर प्रेजेंट, एंड बोथ आर फंक्शनिंग एज O2 ट्रांसपोर्ट बाय हीमोग्लोबिन इन RBCs. ठीक है बेटा. सेकेंड आपका जो सेलुलर एलिमेंट्स है वो है आपका WBCs. WBCs फाइट इन्फेक्शन एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीज. राउंड एंड इरेगुलर इन शेप एंड आर कैपेबल ऑफ अमीबॉइड मूवमेंट. राउंड शेप होते हैं, अमीबॉइड मूवमेंट इनका होता है, एंड कलरलेस. ये कैसे होते हैं, कलरलेस होती हैं ड्यू टू ऑफ लैक ऑफ हीमोग्लोबिन. इनके पास हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है, इसीलिए ये कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं. And help in formation of antibodies which neutralize or kill the germs that enter our body. तो ये क्या करते हैं, ये एंटीबॉडीज़ बनाते हैं हमारी बॉडी के अंदर, एंड विच न्यूट्रलाइज और किल द जर्म्स, जो क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज होकर जर्म्स को किल कर देते हैं जो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं. सो व्हाट इज़ एंटीबॉडीज़ एंड एंटीजेंस. एंटीबॉडीज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी इन अवर बॉडी. जो हमारा एंटीबॉडीज़ होते हैं ये क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, मतलब जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी पावर होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. और जो एंटीबॉडीज़ होती हैं ये बाइसेप्ड होती हैं, बाइसेप्ड प्रोटीन विच हेल्प टू इंट्रोड्यूस फ्रॉम हार्मिंग द बॉडी एंड ऑल्सो कॉल्ड एज इम्यूनोग्लोबिन. एंड व्हाट इज़ एंटीजन. सो द एंटीजन इज़ a harmful substance which enter the body which cause the body to make antibodies as a response to fight of disease like virus, bacteria and carbohydrates. So it is called as antigen. WBCs का जो लाइफ स्पैन होता है बेटा वो 1 से 2 वीक तक के हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती हैं आफ्टर दे आर डिस्ट्रॉय इन स्प्लीन. And it is also called as soldier of the body because they fight the infection and fight the bacteria and virus in our body. That's why it is called as soldier of the body. Third one is platelets. Platelets is also called as thrombocytes. So the platelets are colorless, oval or round and cytoplasmic fragment formed in the bone marrow. जो प्लेटलेट्स होते हैं बेटा हमारी बॉडी के अंदर, जैसे कि हम लोगों को डेंगू हो जाता है तो हमारे यहाँ पर क्या होता है, प्लेटलेट्स जो होते हैं वो बॉडी के अंदर कम या ज़्यादा होते हैं, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं. तो ये कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं, ओवल और राउंड होते हैं. साइटोप्लाज्मिक फ्रेगमेंट्स आर फॉर्म्ड इन द बोन मैरो, इन्यूक्लिएटेड विदाउट न्यूक्लियस, बाउंडेड बाय द मेम्ब्रेन एंड कंटेन अ few organelles and play a major role in blood clotting. ये अपना बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं ब्लड क्लॉटिंग में जो प्लेटलेट्स होते हैं. मोस्टली जो हमारी बॉडी का ब्लीडिंग टाइम होता है, मतलब जब हमें कोई कट या बाउंड हो जाता है तो आफ्टर कट एंड बाउंड
जो ब्लीडिंग टाइम होता है वो 2 से 3 मिनट्स तक का होता है। आफ्टर देन वो अपने आप ही क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। यानी कि जो हमारी बॉडी के अंदर जो सेलुलर एलिमेंट्स होते हैं लाइक प्लेटलेट्स होते हैं और कुछ हमारे यहाँ पर फाइब्रिनोजेन प्रोटीन्स होते हैं, वो भी क्या करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। अभी हमने प्लाज्मा में पढ़ा था फाइब्रिनोजेन प्रोटीन जो क्या करती है, हेल्प करती है ब्लड क्लॉटिंग में। एंड प्लेटलेट्स ऑल्सो हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग एंड द विटामिन K is also help in the blood clotting. So the play a major role in blood clotting. All the blood cells made in bone marrow, ये भी सारी जो सेल्स होती हैं वो कहाँ बनती हैं, बोन मैरो में बनती हैं, फ्रॉम द सेल कॉल्ड स्टेम सेल्स। कौन सी सेल से, स्टेम सेल से। जो स्टेम सेल्स होती हैं बेटा हमारी बॉडी के अंदर, ये एक लिविंग सेल्स होती हैं और ये हमारी बॉडी में लगातार मतलब स्टेम सेल्स का मतलब है मतलब जो भी हमारी सेल्स बॉडी के अंदर लगातार बनती जाती हैं, मतलब ये नई नई सेल्स का, न्यू सेल्स का ये क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं स्टेम सेल्स जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये स्टेम सेल्स के द्वारा क्या करते हैं, नई नई सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। सो हमारे 3 सेलुलर एलिमेंट्स थे, RBCs, WBCs एंड प्लेटलेट्स। नाउ आई विल डिस्कस द फंक्शन ऑफ ब्लड। देखिए फंक्शन ऑफ ब्लड की बात करते हैं तो फर्स्टली जो फंक्शन होता है हमारे ब्लड का, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, बिकॉज अवर बॉडी हैव अ सर्कुलेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम कई तरीके मतलब कई सारे बॉडी ऑर्गन से मिलकर हमारा जो हार्ट है वो 4 चैम्बर्स में डिवाइड रहता है। एंड वो 4 चैम्बर्स में डिवाइड रहने के बाद जब हमारी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होता है, तो जब ब्लड का सर्कुलेशन होगा तो जो भी हम लोग फूड लेते हैं, इनटेक करते हैं, और जो भी हम लोग प्रोटीन्स लेते हैं, मिनरल्स लेते हैं, जो भी लेते हैं, वो हमारी बॉडी में एज अ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। और वही न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं जब हमारे ब्लड में पहुंचते हैं तो वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, ट्रांसपोर्ट होता है उनका बाई ब्लड हमारी पूरी बॉडी के अंदर। और जब पूरी बॉडी के अंदर ये सर्कुलेट होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। सो द फर्स्ट जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, तो जो भी डाइजेस्टेड फूड हम एब्जॉर्ब करते हैं बाय ब्लड एंड जो हमारी एब्जॉर्प्शन साइट होती है इंटेस्टाइन की, एंड ट्रांसपोर्ट इज द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, तो वो हमारे डिफरेंट ऑर्गन बॉडी में क्या करवा देता है, ट्रांसपोर्ट करवा देता है। एंड सेकंड क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज बाय ब्लड। हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, रेस्पिरेटरी गैसेज का एक्सचेंज होता है। लाइक हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हमारा रेस्पिरेशन होता है उसमें एक्सचेंज होता है O2 और CO2 का, है ना। तो हमने वहाँ पर पढ़ा था कि जब हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ऑक्सीजन का फ्रॉम द लंग्स एंड टू द टिश्यूज़ एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू द टिश्यूज़ ऑफ द लंग्स, तो क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन होता है कंबाइंड होता है ऑक्सीजन के साथ, तो वो क्या बना लेता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। सो द हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेते हैं। तो एक बनकर आता है हीमोग्लोबिन प्लस O2 इज इक्वल टू हम कहते हैं SbO2। तो जो RBCs होती हैं बेटा, RBCs विद ऑक्सी हीमोग्लोबिन ट्रेवल्स टू द टिश्यूज़ एंड रिलीज ऑक्सीजन टू बी यूज्ड बाय देम, है ना। एंड ऑन द बैक क्या होता है कि हीमोग्लोबिन कंबाइंड होती है विद CO2 एंड फॉर्म अ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन एंड रिलीज CO2 इन द एल्वियोलाई फ्रॉम वेयर इट इज़ एक्सेल आउट, जहाँ पर हम उसको जाकर क्या कर देते हैं, एक्सेल कर देते हैं। मतलब ये दोनों में ही हमारा क्या करता है, मतलब रेस्पिरेटरी गैसेज में जब हमारा ऑक्सीजन जाता है और CO2 आता है तो ये प्रोसेस चलते हैं, तो वहाँ पर हमारी O2 और CO2 का क्या होता है, एक्सचेंज होता है बाय द ब्लड, ठीक है। थर्ड है आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। हमारी बॉडी के अंदर जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं, सबस्टेंस होते हैं, प्रोड्यूस इन द बॉडी एंड आर ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड टू द ऑर्गन मींट फॉर देयर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। यानी कि जो भी हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट चीज़ें होती हैं वो हमारे रिमूव हो जाती हैं बाई ब्लड। एंड द नेक्स्ट वन इज़ ट्रांसपोर्ट ऑफ बॉडी सेक्रेशन। हमारी बॉडी के अंदर कुछ सेक्रेशंस होते हैं, लाइक ब्लड ट्रांसपोर्ट केमिकल सेक्रेशन लाइक हार्मोन्स फ्रॉम द साइट ऑफ देयर सेक्रेशन टू द टारगेट ऑर्गन, है ना। ये हमारी बॉडी के अंदर जो भी सिक्रीशन होते हैं वो किसी न किसी साइट पर, किसी टारगेट ऑर्गन पर जाकर ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करवाता है ब्लड। मतलब कोई भी हमारा बॉडी के अंदर हमारे कई सारे हार्मोनल ग्लैंड्स होती हैं जहाँ पर हमारे हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। तो जो ब्लड है उनके जब वहाँ पहुँचता है तो वहाँ पर वो किसी ऑर्गन को टारगेट करता है और वहाँ पर पर्टिकुलरली उसको क्या करवाता है, उसका सिक्रेशन करवाता है, ठीक है। एंड थर्ड जो है आपका फोर्थ वन है रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। जो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो भी ब्लड की वजह से ही क्या रहता है, मेंटेन रहता है। तो ब्लड हेल्प टू कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर बाय इवनली डिस्टर्बिंग द हीट प्रोड्यूस्ड इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है सॉरी। एंड डिफेंस अगेंस्ट द इन्फेक्शन।
और ये क्या करता है, डिफेंस मतलब हमारे जो भी इन्फेक्शन होता है उसके अगेंस्ट ये अपना वर्क करता है, बचाता है हमें। तो ब्लड कंटेन वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, अभी जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो ब्लड है कंटेन करता है वाइट ब्लड कॉर्पसेल दैट आर फेगोसाइटिक इन नेचर, जो कैसी नेचर की होती है, फेगोसाइटिक इन नेचर। एंड WBC आल्सो प्रोड्यूस एंटीबॉडीज विच कम्बैट द बैक्टीरिया आफ्टर न्यूट्रलाइजिंग देयर टॉक्सिन्स एंड दस प्ले अ प्रोटेक्टिव रोल। तो जो भी हमारा इन्फेक्शन है उससे हमें कौन बचाता है, WBCs बचाते हैं। तो ये क्या करता है कि जो हमारा ब्लड है, क्योंकि ब्लड भी वहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो ये हमें डिफेंस करता है, मतलब जो भी हमारा इन्फेक्शन है उसके अगेंस्ट। एंड लास्ट आपका जो है वो है आपका प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस। ये हमारी बॉडी के अंदर ब्लड लॉस को भी क्या करता है, बचाता है। लाइक एट द साइट ऑफ इंजरी क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा, जो भी हमारी कोई भी साइट होती है इंजरी की, वहाँ पर कोई ना कोई क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट होता है प्लाज्मा के अंदर। तो हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स में हमारे आते हैं प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन। जैसा कि अभी हम लोगों ने प्लाज्मा जब पढ़ा था, हमने फाइब्रिनोजन के बारे में पढ़ा था, तो वो हमारा एक मेन क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। तो वही हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये क्या करता है कि यहाँ पर हमारे कुछ क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा के अंदर, जिससे जो कि प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन प्रिवेंट द ब्लड लॉस बाई फॉर्मिंग द ब्लड क्लॉट। ये मतलब प्रिवेंट करते हैं ब्लड लॉस को और हमारी बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉट बना देते हैं। तो मतलब जो भी हमारा ब्लड क्लॉटिंग होती है तो उसके बाद हमारे यहाँ से ब्लीडिंग का कोई काम नहीं बचता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट देखिए आपका वाटर बैलेंस, जो हमारा ब्लड है वो वाटर बैलेंस भी करवाता है, क्योंकि वाटर जो है ब्लड मेंटेन वाटर बैलेंस टू अ कांस्टेंट लेवल बाय ब्रिंगिंग अबाउट कांस्टेंट एक्सचेंज ऑफ वाटर एंड बिटवीन सर्कुलेटिंग ब्लड एंड द टिश्यू फ्लूइड, ठीक है। और लास्ट है ये मेंटेनेंस ऑफ pH। हमारी बॉडी के अंदर ये pH को भी क्या करता है, मेंटेन। pH का फुल फॉर्म आप लोग पढ़ चुके हैं केमिस्ट्री में, जैसे हम पोटेंशियल हाइड्रोमीटर कहते हैं, और इसको सबसे पहले सोरेनसन ने दिया था, सबको पता होगा ये चीज़। तो जो pH है हमारी बॉडी बाई ब्लड क्या रहता है, मेंटेन रहता है। तो द प्लाज्मा प्रोटीन्स और एम्फोटेरिक इन नेचर एंड दे एक्ट एज अ बफर एंड दस प्रिवेंट द शिफ्ट ऑफ द pH इन ब्लड। मतलब ये हमारी बॉडी के अंदर pH, मतलब जो भी ब्लड के अंदर जो pH का लेवल होता है उसको मेंटेन करने का काम भी कौन करता है, ब्लड करता है। तो इतने सारे जो फंक्शंस हैं हमारे किसके हैं, ब्लड के हैं। So thank you so much. The topic is complete and further I will discuss the topic of circulatory system in human beings. Thank you so much.